Hello dear students. Today in this video we will discuss about the properties of air for class 7. Air. Air is a mixture of different gases like nitrogen, carbon dioxide, oxygen, argon, etc. We cannot see the air but can feel it. We all have experienced different forms of wind, sometimes very subtle and soothing in the form of breeze and sometimes highly destructive in the form of cyclone, storm, etc., which results in massive destruction of property and life. Now, properties of air. Air is colorless, odorless and tasteless. Air is all around us. Air takes up space. You might have observed when we try to immerse an empty glass or mug or a bottle upside down in water, we feel as if water is pushing it upwards. But actually, the glass or mug or bottle which seem to be empty are filled with air, which occupies space. And until and unless that air would not come out, it won't give space to water to enter in. और इसीलिए जब हम ग्लास या मग को टिल्ट करते हैं तो एयर बबल के फॉर्म में एयर बाहर आती है और पानी वहां पर भरने लगता है. Air has mass. When we take two identical balloons filled with air and tied them on either side of a stick, this will make a balance, but if any one of them is burst, we will observe that the balloon filled with air has more weight than the burst balloon. Air exerts pressure. Air is all around us and exerts pressure on us. We can feel the force exerted by air on our face when we sit on a fast riding motorbike. Air is made up of molecules of different gases that are constantly colliding with each other, and due to this collision it exerts pressure. एयर जो होती है वो गैसेस के अलग अलग मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है और ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इस टकराव के कारण क्या होता है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर. द मोर कोलिशन मोर इज द प्रेशर. कोलिशन जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा एयर एक्सर्ट करेगी. नाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरी ऑब्जेक्ट in all directions. It depends on factors like height of a place and temperature. कितना प्रेशर होगा, एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है वो डिपेंड करता है ऐसे फैक्टर्स पे जैसे कि प्लेस, हाइट ऑफ अ प्लेस, कितने अल्टीट्यूड पे कोई भी प्लेस है और वहां पर टेम्परेचर कितना है. हाई अल्टीट्यूड लो प्रेशर, लो अल्टीट्यूड हाई प्रेशर. टू रिमेंबर दिस जस्ट लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में क्या है, देयर आर 4 पीपल, बट जो सबसे बॉटम मोस्ट लेवल पे है उस इंसान पे, उस पर्सन पे सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, राइट. और इसी तरह से जो टॉप मोस्ट लेवल पे है उस पे सबसे कम प्रेशर होगा. तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हाई अल्टीट्यूड लो प्रेशर, लो अल्टीट्यूड हाई प्रेशर. नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. फॉर दिस वी नीड अ ग्लास एंड अ कार्डबोर्ड. टेक अ ग्लास, fill 1/3 of it with water. Cover the mouth of the glass with a cardboard. अब हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड को अपनी प्लेस पे रख कर हमें ग्लास को अपसाइड डाउन टर्न करना है. क्या होगा, कैन यू इमेजिन? अगर आप ये सोच रहे हैं कि कार्डबोर्ड गिर जाएगा एंड वाटर विल स्पिल आउट, देन यू आर रॉन्ग. वी विल सी दैट द कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल ऑफ. दिस इज ड्यू टू द एयर प्रेशर. द एयर प्रेशर which is there, it exerts an upward pressure on the cardboard, and that is why the cardboard does not fall off. Another example of air exert pressure. Can you fly the kite against the direction of wind? No, it is very difficult. The air strikes the kite and exerts pressure in the direction it is blowing and make it fly higher and higher. Same way, if you try to ride a bicycle against the direction of the wind, it exerts pressure in opposite direction and make it difficult for us to ride a bicycle. और अगर हवा की दिशा में हम चलाएंगे बाइसिकल तो हमें बहुत कम प्रेशर करना पड़ता है या बहुत कम हमारा ताकत लगती है और बहुत अच्छे से हम बाइसिकल को राइड कर सकते हैं. Some more daily life examples of air exerts pressure.
It is easier to row a boat in the direction of the wind. Now, when you try to inflate a balloon, due to the air pressure, initially it will expand and inflate. But if we try to fill more amount of air than its capacity, the balloon will burst as the pressure exerted by the air will be too much. Now, आपने कभी किसी भी लिक्विड को स्ट्रॉ से ड्रिंक करके देखा है? क्या होता है वहां पर? Here, when we suck through the straw, there will be low pressure created inside the straw, and outside the straw there will be higher pressure. The atmospheric pressure will be higher outside. It will push the liquid into the straw. Now, high speed results in reduced air pressure. This is another property of air. When high speed winds are blown, they blow off the air from that area and thus creates a low pressure in that area. Let me translate in Hindi. जब बहुत high speed winds blow होते हैं तो उस एरिया में क्या होता है, जो एयर होती है वो पूरी ब्लो हो जाती है उसके साथ, एंड दैट इज वाई जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. लो प्रेशर इज कॉज्ड व्हेन देयर इज लेसर अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स and high pressure is created when there are more amount of air molecules in that area. जितने molecules air molecules ज़्यादा होंगे उतना high pressure होगा वहाँ पर, और जितने कम होंगे उतना low pressure होगा. And this high speed wind has an ability to lift things. ये जो high speed wind होता है वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को उड़ा के भी ले जा सकता है. Can you blow and lift? एक एग्जाम्पल हम अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि हाई स्पीड विंड कैन लिफ्ट द थिंग्स. यू हैव टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड. द मेजरमेंट शुड बी अप्रॉक्सीमेट. होल्ड इट बिटवीन योर थंब एंड फोरफिंगर. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन. हमें अगर ये लग रहा है कि स्ट्रिप और नीचे चला जाएगा, देन अगेन वी आर रॉन्ग. You will notice that the paper strip rises upwards. ये paper strip होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा. Now let us discuss ऐसा क्यों होगा. When we blow above the paper, the air pressure on the top of the strip is reduced. क्योंकि हमने एयर जोर से ब्लो किया है एयर, तो वहां पर क्या होगा, सारी एयर वहां से इट विल मूव, द मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम दैट एरिया, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा. अब स्ट्रिप के नीचे क्या है, स्ट्रिप के नीचे विल बी अ ग्रेटर एयर प्रेशर कंपैरिजन में. सो दिस कॉजेज द प्रेशर एक्टिंग बिलो द पेपर. बिलो द पेपर जो होगा उसको स्ट्रिप को अपवर्ड पुश करता है. नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन लो एयर प्रेशर. Take 2 identical balloons and tie them at the ends of the stick, at least 10 centimeter apart. You just check in the picture कि आपको कैसे balloons को tie करना है. Blow air in the space between the balloons. अब balloons के बीच में जो space है वहाँ हमें blow करना है. What do you observe? Again हम सोच सकते हैं या हम ये कहेंगे कि अब दोनों balloons और दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, but that is wrong. They will move towards each other. वो क्या होंगे, एक दूसरे के और करीब आएंगे. Now why the balloons will move towards each other? Let us discuss. As the air is blown, the speed of air will increase, and which will result in low pressure area. Speed air की speed बढ़ जाएगी तो वहां पर से क्या होंगे, सारे air molecules will move from that area, and that is why low pressure area will be created. The pressure on the opposite sides of the balloon will become हायर. तो दोनों तरफ बलून के ऑपोजिट साइड पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, एंड दैट इज वाई दोनों बलून्स को वो पुश करेंगे एक दूसरे की तरफ, एंड सो द बलून्स विल बी पुश टुवर्ड्स ईच अदर. नाउ नेक्स्ट, व्हाई आर द रूफ्स ऑफ सम हाउसेस ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग हाई स्पीड विंड्स और स्टॉर्म. जब आपने कई बार सुना होगा, न्यूज में आता है कि बहुत तेज हवाओं की वजह से कई घरों की छतें उड़ जाती हैं, है ना. तो व्हाई दिस हैपन्स? दिस हैपन्स बिकॉज द हाई स्पीड विंड ब्लोइंग ओवर द रूफ क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. ये जो हाई स्पीड विंड होता है वो रूफ के ऊपर क्या करेगा, वहां से विंड विल मूव, ब्लो होगा, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा. द प्रेशर बिलो द रूफ, रूफ के नीचे जो प्रेशर होगा is now larger than the pressure above the roof. Once the roof is lifted up, एक बार रूफ थोड़ा सा भी लिफ्ट हो गया,
देन इट इज ब्लोन ऑफ विद द विंड अलोंग इट्स डायरेक्शन, वो उसके साथ हवा की डायरेक्शन में उड़ जाएगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया प्लस एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. एयर को गर्म करने पर वो एक्सपांड होती है, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. ओके, सो दैट विल indicate through this activity. Let us understand both the above mentioned properties of air by the following activity. Take an empty bottle and cover its mouth with the balloon. Place the bottle in the tub of hot water and observe the changes. आपको कैसा अरेंजमेंट करना है वो आपको पिक्चर में दिख रहा है. यू हैव टू टेक अ बॉटल, उसके माउथ को कवर कर देना है विद द बलून और फिर उस बॉटल को आपको हॉट वाटर कंटेनिंग टब में रखना है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, द बलून विल इन्फ्लेट, वो फूल जाएगा. व्हेन द बॉटल इज पुट इनटू द हॉट वाटर, द एयर पार्टिकल्स स्टार्ट गेटिंग हीटेड. जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, गर्म होना शुरू हो जाएंगे. द हीट मेक्स द एयर पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड कवर मोर स्पेस. अब क्या होगा, हीट की वजह से एयर पार्टिकल्स और तेजी से दे विल कोलाइड इनटू ईच अदर एंड दे विल कवर मोर स्पेस. दिस शोज दैट एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. ये जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का आपने डिस्कस किया था, दिस शोज दैट एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, ये हमारा यहाँ पर कवर अप हो गया. नाउ अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ऑल्सो व्हेन द एयर गेट्स हीटेड, और जब एयर गर्म होती है, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेस. बॉटल के अंदर का क्या होगा, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. द एयर प्रेशर इनसाइड द बलून इज लोअर देन दैट ऑफ बॉटल. अब बलून के अंदर एयर प्रेशर कम है तो क्या होगा, दस द एयर मूव्स इनटू द बलून. बलून के अंदर वो एयर मूव किया और विच स्टार्ट्स इन्फ्लेटिंग, और जिसकी वजह से बलून इन्फ्लेट होना शुरू हो गया. दिस शोज दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. Air expands on heating. There are few more examples of air expands on heating. Okay, it is about चपाती. आपने घर पे देखा होगा मम्मा जब गैस पे रखती है चपाती को तो वो पूरी फूल जाती है, जस्ट लाइक अ बॉल. तो why does a chapati inflate when it is heated? As the chapati is heated, the water inside the dough gets converted into steam. मम्मा जब आटा लगाती है when she kneads the dough, तो उसमें क्या क्या डालती है वो, उसमें आटा लगता है, पानी डालते हैं, राइट. तो दैट वाटर व्हेन इट इज हीटेड, एज वी ऑल नो कि पानी को जब गर्म किया जाता है इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम. तो स्टीम में कन्वर्ट होगा एंड स्टीम एक्सपांड्स ऑन फर्दर हीटिंग. और जब उसे और गर्म किया जाता है आगे तो स्टीम क्या होगी, इट विल स्टार्ट एक्सपांडिंग और ज्यादा स्पेस वो कवर अप करेगी. एज देयर इज नो वे टू एस्केप. अब चपाती के अंदर कहीं पर तो वो बाहर निकल नहीं सकती है, तो दैट इज वाई द चपाती इन्फ्लेट्स. उसकी वजह से चपाती क्या होगी, इन्फ्लेट होगी, फूल जाएगी. हाउ डज हॉट एयर बलून वर्क? हॉट एयर बलून कैसे वर्क करता है, वो इतना ऊपर आसमान में कैसे उड़ता है, तो उसमें कोई मशीन नहीं लगी होती, कोई मोटर नहीं लगी होती, राइट. तो व्हेन द बर्नर प्रेजेंट इनसाइड द बलून, बलून के अंदर बर्नर प्रेजेंट होता है, वो जब उसे टर्न ऑन किया जाता है, द एयर इनसाइड द बलून गेट्स हीटेड. ओके, बलून के अंदर की जो हवा होगी वो उस बर्नर को ऑन करते ही गर्म होने लगेगी. इट बिकम्स लाइटर, वो क्या हो जाएगी, गर्म हवा इज ऑलवेज लाइटर देन द कोल्ड एयर. एंड एक्सपांड भी होगी, इट विल कवर अप मोर स्पेस एंड इट राइजेस अप, वो ऊपर की तरफ उठेगी. दिस कॉजेज द बलून टू फ्लोट अपवर्ड्स. उसकी वजह से क्या होगा, बलून हमारा अपवर्ड्स फ्लोट करने लगेगा. इफ द एयर इज अलाउड टू कूल, अब जब वापस आना है, नीचे उतरना है, तो क्या किया जाएगा, एयर को ठंडा करना पड़ेगा. द बलून बिगिंस टू कम डाउन स्लोली, फिर धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है. Why does the smoke always rise upwards? आपने कई बार फैक्ट्रीज की या कहीं पर चिमनी लगी हुई होती है, आपने देखा होगा कि जो चिमनीज होती है उसमें से स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ उठता है. तो why does this happen? The smoke from a chimney contains hot air particles. वहाँ चिमनी है तो उसमें क्या होता है, हॉट एयर पार्टिकल्स होते हैं. द सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स आर कूलर, और उसके आसपास के एरिया में एयर पार्टिकल्स कैसे होंगे, ठंडे होंगे. एज एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, hot air becomes lighter than the surrounding cool air. So the smoke always rises upwards. Now we will discuss about few natural phenomena, that is unequal heating of the land and water surfaces. तो यहाँ पर क्या होता है कि as you all know, land absorbs heat more than the water.
लैंड जो होती है वो हीट को ज़्यादा जल्दी से और फटाफट एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर की कंपैरिजन में। तो ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, लैंड सरफेस गेट्स हीटेड, और उसकी वजह से द एयर अबव द लैंड सरफेस विल ऑल्सो गेट हीटेड। As it gets heated, हमें पता है when air gets heated, it expands, it rises upward, तो it will start rising upward and land surface के above क्या होगा, एक low pressure area create होगा। और क्या होगा, जो sea के ऊपर की हवा होगी, it is in comparison it is quite cool, तो there will be high pressure area above the water surface. The air from the sea water, like the surface of the sea, will move towards the land surface, that is from high pressure area to the low pressure area, and this breeze, this air blowing of air is known as sea breeze, and this occurs during the daytime. Now land breeze. At night the land cools faster than water in the sea, so the air above the sea is warmer than the air above the land surface. As it is lighter, the warmer air over the sea rises up. क्या होगा, अब ये तो ठंडी हो गई, पानी है, लैंड के ऊपर की हवा बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है, और उसके कंपैरिजन में पानी के ऊपर की जो एयर होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। सो इट विल राइज अपवर्ड एंड इट विल क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया अबव द वाटर सरफेस। और फिर क्या होगा, लैंड के ऊपर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा एज कंपेयर टू द वाटर सरफेस। तो the air from the land will start moving towards the water or above the water surface, and this type of wind or breeze is known as land breeze, and this occurs at night. Thank you for watching. Happy learning.